ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹਾਂ ਨਿਊਯਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਯੋਗਾ ਡੇ ਦੇ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਯੋਗਾ ਡੇ ਦੇ ਸਫਲ ਇਵੈਂਟਸ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜੋ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਾਹ ਲੈਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਇੰਡੀਅਨ ਅੰਬੈਸਡਰ ਸੰਦੀਪ ਚੱਕਰਵਰਤੀ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਕਤ ਮੰਗਿਆ ਕੁਝ ਹੋਰ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਅੰਬੈਸਡਰ ਸਾਹਿਬ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਫॉर योर टाइम ਔਰ ਮੁਬਾਰਕਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਫਲ ਇਵੈਂਟਸ ਕਰ ਹਟੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਇਵੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗਿਣੀਏ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਵਕਤ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਔਰ बहुत सारे इंपॉर्टेंट काम सी जिहड़े कम्युनिटी दे होए होने हैं, ऐसे किहड़े इनिशिएटिव हैं जिहड़े तुसीं अपने सफल इनिशिएटिव दे विच गिनोगे? देखिए, 2-3 चीज़ें जो थी जो मैंने करने की कोशिश की। एक तो ये कि कॉन्सुलेट और कम्युनिटी के बीच में फासला कम करने की कोशिश करी हमने। तो इमरजेंसीज़ में दिक्कत जब लोगों को पेश आती है, हम लोग हर समय कोशिश करते हैं लोगों के सामने खड़े रहें, पास साथ में खड़े रहें। दूसरी बात यह कि ये कॉन्सुलेट एट डोर स्टेप ये काफ़ी सक्सेसफुल हुआ है और काफ़ी डिमांड है कम्युनिटी से, तो हम उसको रिस्पॉन्ड करने की कोशिश कर रहे हैं। कभी कभी तो हर वीकेंड पे हम लोग बाहर होते हैं, तो ये एक सक्सेसफुल है। माय प्रीडिसेसर्स मिस्टर मूले एंड रीवा गंगोली दास, आई थिंक दे डिड अ लॉट ऑफ वर्क इन टाइम। देयर वर मेनी इश्यूज विद द consular services, particularly as we didn't have a very good outsource agency, so they had to do a lot of cleanup. So I am that way lucky that I have inherited something which is already in action, in motion. So I would be grateful to them. Also, we had a change of the outsource agency, CKGS. More or less, I think they have done a good job. There are issues with them which I will address separately. What we have been able to do is, so the routine work has gone on quite well, because of the activity or actions of my predecessor. What I have tried to do is that we have attempted to, and I think slightly successfully also, is respond to emergencies and quick response system. If you are in trouble, you need a visa or a passport, I can claim that my response will be the fastest. And even on off days and holidays and off hours, death cases, accident cases, I don't think my consulate is lacking or wanting in any way. So I think that has been people say that we are very approachable, and any time there is a need, crisis, routine things are 10 दिन की जगह 11 दिन लग गए या 2 दिन की जगह 3 दिन लग गए, लोगों को इतना फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब किसी की डेथ होती है या मेडिकल केस होती है, इमरजेंसी होती है, तब हम उनके साथ में खड़े हो पाते हैं। आई थिंक दैट इज बीन my effort and my objective, and I think I do it very diligently. Even over weekends, I always check my mail and this and that. And we have been, I think most of the grievances go away when there is a response. 90% of the grievances are because कोई response नहीं आया। अगर आप किसी को मेल भी भेज देना, सॉरी मैं कर नहीं सकता, वो आदमी संतुष्ट हो जाता है। तो आई थिंक वी हैव ट्राइड टू इम्प्रूव आवर रिस्पॉन्स सिस्टम. वी आर स्टिल ट्राइंग टू इम्प्रूव इट. वी आर ट्राइंग टू रिमूव द ह्यूमन इंटरफेस. वी आर ट्राइंग टू मेक अ डिजिटल सिस्टम that has put in place. We are doing, there are some teething issues, but we will sort it out. So my motto or my slogan to all my colleagues is that, for us it may be one case, but for the person who is handling it, whose case it is 100%, only case 100%. हमारे लिए it could be 0.1%. So I think my staff understands that, and also we are doing a lot of outreach now. We are doing a lot of camps. We're going to people. So I think that has had an effect. Baki, there are some issues which are not in our hands, which are, there are issues with the OCI form, there are issues with the interface, but that is not in our hands. The only thing we can do is we can write to our ministry, and when Secretary Mulle comes, I think again we will raise it with him. So those are systemic issues, not specific to New York, but if there are any issues specific to New York, I have tried to redress them. That is one thing which I want to say. Secondly, there are issues with CKGS, but CKGS का contract खत्म होने आ रहा है. Government of India will go for a global tender. So, there is not much we can do at this stage. उनके कुछ महीने रह गए हैं. So, we are very, very hopeful that when the new tender comes out, it will be a larger cake. So, more capable and more, more resourceful companies will bid in the contract, and then we will have an improvement on what we have. But on the whole, I think people have told me that they are content with CKGS, and our relationship with them is also solid. There is another issue of the telephone charge. I know, I am aware of it, but that has been in the contract.
it is they didn't. I don't think it's unfair because they don't charge you for 5 minutes. 5 minutes is free. Now I don't think there should be any issue which takes more than 5 minutes. And if it takes more than 5 minutes, you send in a mail. Because the problem is if you leave it free, people keep on talking for 20 minutes, 25 minutes. And if one person is talking for 25 minutes on the phone line, they are depriving others for that chance. 7 others, yes. And I am sorry to say, but this complaint has come from very few people. And particularly from certain people, but on the whole people have accepted it. अब 5 मिनट से ज़्यादा phone पे कौन बात करता है? आप मुझे बताइए. So consulate has a very wide area of coverage. You have 10 states to cover. When you talk about the money being charged on phone through CKGS, the byproduct of that is people who are living far away from consulate, who are finding it difficult to approach you directly, they are ultimately going into the hands of the agents who are preparing their files and giving it to CKGS. Then there comes the question of corruption. There are so many issues which you'll never get to know. People are blaming consulate that there is a amount of money to be charged for getting your passport, which is probably not coming into anybody's hand connected to consulate. But there are agents who are doing it, which is an offshoot of that particular long wait on CKGS phone lines, or maybe the distance from consulate. So anybody who's living 100, 150 miles, 200 miles away finds it easy to pay money to one agent. Is there a way to find, is there a way which you think could be faster for them? I think you're making a big generalization. I don't think the numbers are so big. And अगर किसी को दिक्कत है, they should approach us. Why even go to CKGS? They just mail us, call us. हम जवाब देंगे. आप मुझे एक केस बताइए कि किसी ने हमें अप्रोच करा है वीज़ा या पासपोर्ट के लिए और हम लोगों ने जवाब नहीं दिया. पर बहुत लोग फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हैं. नहीं, मुझे नहीं लगता. अगर वो फ्रस्ट्रेट होकर छोड़ देते हैं तो फिर हमारे पास आए ना. मीडिया पे जाने की या किसी एजेंट पे जाने की क्या जरूरत है? और जो एजेंट पे आप खर्चा करोगे उतने देर में तो आप यहाँ आके हमसे सर्विस लेके उसी दिन घर पहुँच जाओगे. ये जनरलाइजेशन है. दूसरी बात ये है कि हम लोग कोशिश करेंगे नेक्स्ट टेंडरिंग में कि और वीज़ा कलेक्शन सेंटर्स खोलें. हम लोगों ने बात उठाई है और मैं तो चाहूँगा कि जैसे हमारी कम्युनिटी, बहुत बड़ी कम्युनिटी बॉस्टन एरिया में है, वहाँ पे CKGS का ऑफिस होना चाहिए या ओहायो में होना चाहिए, ताकि लोगों को कोई अगर फ़ोन ना कर सकते हैं तो जाके बात कर लें. तो ये मेरी कोशिश रहेगी अगले. तो आपका कॉन्सुलेट एट योर डोर स्टेप्स प्रोग्राम है, उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ाने का या औरों के साथ कनेक्ट करने का? भाई साहब, वो तो हर वीकेंड पे ऑलमोस्ट हो रहा है. अब मैं तो बिन बुलाए जा नहीं सकता. कोई तैयार हो हमें होस्ट करने को, हम जाते हैं. और यहाँ आसपास में करने का फायदा नहीं. लेकिन अभी देखिए हम लोग 14 जुलाई को जा रहे हैं बफेलो, फिर 4 अगस्त को जा रहे हैं हैरिसबर्ग, फिर कनेक्टिकट में है. भरा है एक के बाद. देखिए वो उसमें तो दिक्कत ये है कि वीकेंड में करना पड़ता है, बिकॉज लोग नहीं तो अवेलेबल नहीं होते. हाँ, बट हम करते जा रहे हैं. जैसे जैसे डिमांड आ रहे हैं हम लोग करते जा रहे हैं. एंड द इशू ऑफ एजेंट्स. कौन से एजेंट्स? जो एजेंट्स अपनी दुकान खोल के बैठे हैं. देखिए उसका मैं क्या कर सकता हूँ. कोई एजेंट खोल के दुकान कर रहा है बिजनेस में. पीपल हैव फ्लैग्स ऑफ इंडिया. Indian visa center flag India का. People have flags of India on their shops and declaring we provide you visa and passport. It's not we are providing you help for the service. They simply say we provide you visa and passport for India. Is there a way for consulate to counter that setup? I think it's an old story. I don't think we are not a police organization. हम लोग ये यूनाइटेड स्टेट्स सॉवरेन कंट्री है, इसमें हम क्या कर सकते हैं. इंडियन पासपोर्ट धारक ने मुड़ के फिर अगली बार फिर कोई डील करनी इंडिया जाते ने, तो ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? कुछ पासपोर्ट कैंसिल किए गए ने? एक पॉलिसी था सरकार का कि वो NRIs जो शादी करके भाग जाते हैं उनका कुछ प्रॉपर्टी सीज होगा, बट आई थिंक इट इज नॉट येट बीन क्लियर्ड बाय द गवर्नमेंट. उसमें कुछ इशू. रिसेंटली 10 से ज़्यादा पासपोर्ट रद्द हुए हैं. अगर कोर्ट का ऑर्डर आता है हम लोग रद्द करते हैं. यहाँ से भी करते हैं कोर्ट. अभी हाल ही में हमने 1-2 किए हैं. बट पासपोर्ट रद्द करना भी आसान वो चीज़ नहीं है, क्योंकि देन पीपल गो टू कोर्ट एंड देन वी आर आस्क्ड व्हाई डिड यू. सो वी वेट फॉर अ कोर्ट ऑर्डर. वंस वी गेट अ कोर्ट ऑर्डर वी कैंसिल द पासपोर्ट ऑल्सो.
ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਕੌਂਸੂਲੇਟ ਵੱਲੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਦਦ ਇਨੀਸ਼ੀਏटिव लिया गया है, ਉਹਦੇ ਚ ਕੀ कुछ खास करने की तैयारी थोड़ा जो दसोगे? देखिए मदद इनिशिएटिव में हमारी जैसे संख्या यहाँ बढ़ती जा रही है, फैमिली प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ रही है, विच इज़ अनफॉर्चुनेट, यू नो, वायलेंस अगेंस्ट वीमेन, हॉस्पिटल केसेस, अबैंडनिंग वीमेन, शादी करके वापस चले आते हैं, बीवी को छोड़ के चले आते हैं, यहाँ के दूसरी शादी कर ले, ऐसे केसेस कि संग वांटिंग इन एनी वे। सो आवर, तो उसमें फिर हम लोग का फर्स्ट, हम लोग रिस्पॉन्डर्स होते हैं, हम लोग केस को समझने की कोशिश करते हैं। कई जगह मेडिकल केसेस हो जाती हैं, बच्चे हॉस्पिटल में हैं, स्टूडेंट्स हॉस्पिटल में हैं, एक्सीडेंट केसेस हैं, तो ये कम नहीं है, ये ऑन एन एवरेज दिन में 1-2 केस आता ही रहता है। फिर नेशनल कमीशन ऑफ विमेन हमें लिखता है। लेकिन यहाँ पे एक इशू है कि देखिए कई केसेस होते हैं जो अमेरिकन सिटीजन्स हैं। अब लोग ये नहीं समझ पाते हैं, भारत में बड़ी शोर शराबा हो जाता है कि इनके साथ क्या जा रहा है या कुछ हुआ है, लेकिन जो आदमी यहाँ है या औरत यहाँ है वो तो अमेरिकन सिटीजन है, और उसको अमेरिकन लॉज के हिसाब से, उसको आपको अमेरिकन लॉज के हिसाब से करना पड़ेगा। तो आप क्या किस हद तक इंटरवीन कर सकते हैं? अच्छा, कई जगह में आप इंटरवीन करें। अभी ये केस मेरे पास पर्सनली आया, एक किसी ने एक आदमी नहीं बोलना चाहिए, उन्होंने अपने वाइफ पे उनको अत्याचार किया, उनको आक्रमण किया, चोटें आई, तो फादर वाज एब्सोल्युटली डिस्ट्रॉट। फिर मैंने खुद ही रिस्पॉन्ड किया, किसी के थ्रू आए थे, बट जैसे ही मैंने कहा कि ठीक है हम उनके हस्बैंड से बात करके हम उनको समझाते हैं और आपकी बेटी को हम वापस भेज देते हैं देश, वो कहते नहीं, उनकी तो शादी टूट जाएगी, वो तो अकेली हो जाएगी, ये हो जाएगी। फिर मैं आई बैक्ड आउट बिकॉज माई जॉब इज नॉट टू ब्रेक फैमिलीज एंड मैरिजेस, आई डोंट वांट टू डू दैट। सो दिस इज वेरी डेलिकेट लाइन। सेकेंडली, मेडिकल इश्यूज में प्रॉब्लम होता है प्राइवेसी। यहाँ पे योर प्राइवेसी लॉज आर वेरी सीरियस। यू नो, समटाइम्स समबडी इज एडमिट टू हॉस्पिटल, पेरेंट्स गेट वेरी अपसेट कि आप पता नहीं कर रहे, ये नहीं कर रहे। अरे हम तो हॉस्पिटल में फोन कर सकते हैं, फैमिली को पूछ सकते हैं, लेकिन इन्फॉर्मेशन कोई नहीं देता है। You cannot go there. You cannot go there. Even if you go, they will not let you in. So these are issues which people have to understand. You know, there is a limit to what we can do. But we take the help of women's organizations. मानसी है, सहेली है, ये लोग हमारी बहुत मदद करते हैं, and they have a way of working. And we empanel these women organizations. हमारे 4-5 empaneled है, हम इनके साथ काम करते हैं। तो किसी को अगर दिक्कत हो या तो हमारे पास आए या ये women's organizations में आए। empaneled की लिस्ट हमारे वेबसाइट पे लगाई हम लोगों ने, तो काफ़ी कुछ कर रहे हैं। But this is not the very pleasant side of the work. I would rather not have so many cases, but unfortunately हो रहा है। Okay, बहुत सारे इंसीडेंट ऐसे ਹੋਏ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਮਦਦ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਡੀਲ ਕਰਨੀ ਇੰਡੀਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ? कुछ पासपोर्ट कैंसिल किए गए ने? एक पॉलिसी था सरकार का कि वो एनआरआईज जो शादी करके भाग जाते हैं उनका कुछ प्रॉपर्टी सीज होगा, बट आई थिंक इट इज़ नॉट येट बीन क्लियर्ड बाय द गवर्नमेंट। उसमें कुछ इशू रिसेंटली 10 से ज़्यादा पासपोर्ट रद्द हुए हैं। अगर वहाँ कोर्ट का ऑर्डर आता है हम लोग रद्द करते हैं, यहाँ से भी करते हैं कोर्ट। अभी हाल ही में हमने 1-2 किए हैं, बट पासपोर्ट रद्द करना भी आसान वो चीज़ नहीं है, क्योंकि देन पीपल गो टू कोर्ट एंड देन यू नो वी आर आस्क्ड व्हाई डिड यू, सो वी वेट फॉर अ कोर्ट ऑर्डर। Once we get a court order, we cancel the passport also. We help with some people and distraught people, जो लोग जिनके पास अभी हम लोगों ने एक क्योंकि कोई गुजर गए थे, we sent his body back to India. हाँ करते हैं। फिर women against, हाँ उनको भी भेजते हैं। हाँ उनके पास माँ बाप के पैसा नहीं है या हस्बैंड ने छोड़ दिया है, उनको वापस भेजते हैं। फिर कुछ लीगल फीस भी देते हैं जो औरतें के पास साधन नहीं। इनफैक्ट आप हमारे वेबसाइट में देखेंगे हम लोगों ने 2 नए आइकॉन बनाए, अगर आप देखें। एक है कम्युनिटी अफेयर्स, एक एजुकेशन। उस पर हम लोग क्या क्या कर रहे हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन हम उसमें देते हैं ताकि लोगों को पता चले, तो आप उसको बारे में पब्लिसिटी कर सकते हैं या कोई सुझाव हो और इन्फॉर्मेशन का। ओके एम्बेसडर साहब, बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਸੇ ਨੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ? देखिए वी हेल्प स्टूडेंट्स व्हेन दे नीड। हम ऐसे एक तो जहाँ हम जाते हैं यूनिवर्सिटी में हम लोगों से मिलते हैं, बताते हैं कॉन्सुलेट है, बट स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आए हैं, वो कॉन्सुलेट में टाइम पास करने तो आए नहीं, लेकिन उनको दिक्कत होती है तो दे अप्रोच अस। अभी के कॉन्सुलेट में आपको 2 उदाहरण देता हूँ जब हम लोगों की मदद करी। एक बॉस्टन में एक लड़का था जिसको टीबी हो गया था, उसको कोई रखने को तैयार नहीं था, कोई लैंडलॉर्ड उसको घर देने, वो जिस घर में रहता था उसको निकाल दिया गया, ठीक है।
फिर हम लोगों ने उसको एक होटल में ठहरवाया, हम लोगों ने उसके होटल की खर्चा दिया, लड़के पास पैसे नहीं थे। ओके, एंड एक टेस्ट के लिए वेट कर रहा था, अगर टेस्ट पॉजिटिव होता तो इंडिया चला जाता और टेस्ट नेगेटिव हुआ तो रुक गया, थैंकफुली नेगेटिव निकला, बट नोबडी वाज विलिंग टू गिव हिम शेल्टर, सो वी चिप्ड इन। अभी कुछ दिन पहले न्यू जर्सी में आग लग गई थी, स्टूडेंट्स लोग वो आग के चक्कर से बाहर निकले और घर ही नहीं था, वापस कहाँ जाते, ऐसे ठंड में शॉर्ट्स में बाहर थे। हम लोगों ने कम्युनिटी के साथ में उनको कपड़े दिए, खाना दिया, उनको ले घर करके दिया। एक महीने हम लोगों ने FIA को इन्वॉल्व किया, हम लोगों ने उनके एक दो महीने का घर का भाड़ा भी दिया। तो ऐसे केसेस आते हैं बहुत ज़्यादा। ओके, तो जो कुछ कॉन्सुलेट कर रहा है सर्विसेज, जिसमें औरतों की सेवा है, मदद है, या किसी की डेड बॉडी भेजनी है, किसी बीमार को वापस भेजना है, इट टेक्स अ लॉट ऑफ फंड्स एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट इज सपोर्टिंग यू स्टिल। अगर आप इफ़ यू कैन टॉक अबाउट इट, तो वो फंडिंग सिचुएशन, बैकअप सिचुएशन कैसी है? इज इट जस्ट डिपेंडेंट अपॉन द गवर्नमेंट, या कम्युनिटी आपकी कोई सपोर्ट कर सकती है यहाँ, या कोई स्पॉन्सर सपोर्ट कर कम्युनिटी सपोर्ट करती है, कम्युनिटी सपोर्ट इस दो माध्यम से करती है। एक तो इमीडिएट रिस्पॉन्ड करती है, किसी को दिक्कत हो, जैसे अब ओहायो में कुछ हो गया तो हम इंडियन FIA ओहायो को फ़ोन करेंगे, बॉस्टन में हुआ तो FIA बॉस्टन को फ़ोन करते हैं, वो लोग तुरंत पहुंच जाते हैं, मदद करते हैं, घर में आश्रय देते हैं। बाद में अगर हम लोग को, तो वो काम हमारे फर्स्ट होता है कि किसी तरीके से कौन वहाँ पे है पहला, वो उनको हम पहुँचाने की कोशिश करते हैं। फंड्स की इतनी दिक्कत नहीं होती है, बिकॉज लोग खुद तो करते ही हैं, वॉलंटरली करते हैं, हम किसी से मांगते नहीं, बट हमारे पास इंडियन कम्युनिटी वेलफेयर फंड फैसिलिटी है, उससे हम मदद करते हैं लोगों को। तो हम लोग किसी के पास वैसे मांगने की अभी आवश्यकता नहीं हुई, वी आर क्वाइट कंफर्टेबल। तो जेन्युइन नीडी पीपल को देते हैं, जिनके पास कुछ है नहीं उनको देते हैं। अम्बेसडर थैंक यू सो मच, पर क्योंकि बहुत सारे सवाल हैं, सो आई रिक्वेस्ट यू टू गिव मी मोर टाइम ताकि हम दूसरा एपिसोड कंटिन्यू कर सकें। हाँ, जरूर हम लोग PTC हैज़ बीन कवरिंग द कॉन्सुलेट वेरी वेल, सो आई विल बी वेरी हैप्पी टू गिव टाइम। एक कॉमन ऑर्गेनाइजेशन हो जाए, या सारियां दी इंटरेक्शन वधे की चाहते हो? नहीं, कॉमन ऑर्गेनाइजेशन मुश्किल होगा, क्योंकि जैसे आप देखते हैं हर ऑर्गेनाइजेशन में लीडरशिप अलग अलग होती है, लोग अपने अपने तरीके से चीज़ करना चाहेंगे। मैं सोच रहा था मोर लाइक ए नेटवर्क, कि पता चले एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, और जहाँ जिसको फ़ायदा लेना है वो ले, जिसको नहीं लेना है कम से कम इन्फॉर्मेशन तो होना चाहिए। यहाँ पे बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जैसे AIA का आपने उस दिन देखा, या प्रथम विद्या है, एकल है, चिल्ड्रंस होप है, कई संस्थाएं हैं, शंकर फाउंडेशन है, वेन्यू आई हॉस्पिटल है, आपके डॉक्टर साहब का है, आई फाउंडेशन का है, उस दिन मैं जा नहीं पाया आपके फंक्शन में। ऐसे कई संस्था हैं जो इंडिया में काम आप ही करता है, कई सारे करते हैं। लेकिन क्या चिल्ड्रंस होप को पता है कि प्रथम क्या कर रहा है? क्या एकल को पता है कि AIA क्या कर रहा है? क्या जयपुर फुट को पता है प्रथम क्या कर रहा है? नहीं मालूम।